Good afternoon, dear students. My subject is EECA, Electrical Energy Conservation and Auditing. And the today topic in EECA is that energy audit and need for energy audit. So let us start with my topic, energy audit and need for energy audit. At the first, we know about the definition of energy audit. What is the energy audit? Energy audit क्या है? Energy audit की definition क्या है? तो first we know about the definition of energy audit. Energy audit is the key to a systematic approach for decision making in the area of energy management. And energy audit एक systematic approach है डिसीजन लेने के लिए इन द एरिया ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट. एनर्जी मैनेजमेंट जिस भी एरिया में हमें एनर्जी का मैनेजमेंट करना है उस पर्टिकुलर एरिया में डिसीजन लेने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? एनर्जी ऑडिट है. एनर्जी ऑडिट इज द की टू ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग इन द एरिया ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट. एनर्जी मैनेजमेंट के एरिया में पर्टिकुलर एरिया में डिसीजन मेकिंग के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच एनर्जी ऑडिट है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट क्वांटिफाइज द एनर्जी यूजेज अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट फंक्शन. यह डिस्क्रीट फंक्शंस के अनुसार जो एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं उसको क्वांटिफाई करती है. इट क्वांटिफाइज द एनर्जी यूजेज अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट फंक्शन. यह डिस्क्रीट फंक्शंस के अनुसार एनर्जी जो हम उपयोग में ले रहे हैं उसको क्वांटिफाई करती है. Industrial energy audit is an effective tool in defining and pursuing comprehensive energy management program. Industrial energy audit एक effective tool है in defining and pursuing comprehensive energy management program. Comprehensive energy management program को define करने में और pursuing करने में industrial energy audit एक effective tool है. Now the third point in energy audit is that Now the third point in energy audit is that it attempts to balance the total energy inputs with its use and serves to identify all the energy streams in a facility. All the energy streams in a facility. This is the next point in energy audit. It attempts to balance the total energy input with its use. यानी इसके उपयोग के साथ यह टोटल एनर्जी इनपुट को बैलेंस रखता है एंड सर्व्स टू आइडेंटिफाई ऑल द एनर्जी स्ट्रीम्स इन ए फैसिलिटी. और एक फैसिलिटी में सभी एनर्जी स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करता है. इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द टोटल एनर्जी इनपुट्स विद इट्स यूज. टोटल एनर्जी इनपुट को इसके यूज के साथ बैलेंस रखता है एंड सर्व्स टू आइडेंटिफाई ऑल द एनर्जी स्ट्रीम्स इन ए फैसिलिटी. और एक फैसिलिटी में सारी एनर्जी स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करता है. Now the next point, next definition according to the Electrical Energy Conservation Act 2001. Now the next definition of energy audit according to Energy Conservation Act 2001. As per the Energy Conservation Act 2001, Energy Conservation
कंजर्वेशन एक्ट 2001 energy audit is defined as energy audit is defined as energy audit is defined as verification comma monitoring and analysis of use of energy including submission of technical report containing recommendations for improving energy efficiency with cost benefit analysis and an action plan to reduce energy consumption. This is the definition of energy audit according to Energy Conservation Act 2001. The definition of energy audit according to the Energy Conservation Act 2001. As per the Energy Conservation Act 2001, energy audit is defined as energy audit को हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी, यानी जो भी एनर्जी का हम उपयोग कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करना, उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करना और उसको एनालिसिस करने के रूप में एनर्जी ऑडिट को डिफाइन करते हैं। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, एक टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट कराना जिसमें शामिल है कंटेनिंग रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उस टेक्निकल रिपोर्ट में एनर्जी की इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन शामिल होती हैं जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर होते हैं एंड एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, और एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए एक्शन प्लान्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द नीड फॉर एनर्जी ऑडिट। Next is the need for energy audit. First need is the in any industry the three top operating expenses
operating expenses. Operating expenses. The three top operating expenses are often found to the energy, both electrical and thermal, both electrical and thermal, both electrical and thermal, labor and materials, labor and materials, labor and materials. If one were relate to the manageability, of the cost or potential cost saving in each of the above components, This is the first need of energy audit. The first point is for need for energy audit is that in any industry, कोई भी इंडस्ट्री में the three or top operating expenses, तीन top operating खर्चे होते हैं. Expenses means खर्चा. तीन top operating expenses होते हैं are often found, जो पाए जाते हैं to the energy में जो एनर्जी होती है हमारी both electrical and thermal. एक तो एनर्जी हो गया both electrical and thermal, labor and materials. If one were relate to the manageability of the cost, यदि एक कॉस्ट की मैनेजेबिलिटी से रिलेटेड है, संबंधित है, एंड पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग इन ईच ऑफ द अबव कंपोनेंट, और प्रत्येक दिए गए कंपोनेंट में जो पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग को बताता है. इन एनी इंडस्ट्री थ्री टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑफन फाउंड टू द एनर्जी बोथ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल, लेबर एंड मटेरियल्स. इफ वन वर रिलेट टू द मैनेजेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट, एक इसमें कॉस्ट की मैनेजेबिलिटी से रिलेट है, संबंधित है, और पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, और पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं इन ईच ऑफ द अबव कंपोनेंट. दिए गए कंपोनेंट में हम पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं. एंड पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग इन ईच ऑफ द अबव कंपोनेंट. दिस इज द नीड फॉर एनर्जी ऑडिट, फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट energy would invariably emerge as a top ranker and thus energy management function constitute a strategic area for cost reduction.
Next point is that energy would invariably emerge as a top ranker. Energy हमेशा एक टॉप रैंक के रूप में उभरेगी and thus energy management function constitute a strategic area for cost reduction. इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट फंक्शन में कॉस्ट रिडक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजिक एरिया कंस्टिट्यूट होता है. इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट फंक्शन में कॉस्ट रिडक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजिक एरिया कंस्टिट्यूट होता है, पाया जाता है. एक स्ट्रेटेजिक एरिया पाया जाता है. एनर्जी वुड इनवेरिएबली इमर्ज एज ए टॉप रैंकर. एनर्जी हमेशा एक टॉप रैंक के रूप में उभरेगी एंड थस एनर्जी मैनेजमेंट फंक्शन कंस्टिट्यूट ए स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर कॉस्ट रिडक्शन. Now the third point in energy need for energy audit is that energy audit will help to understand more about the base of energy, and fuel are used in industry and help in identifying the areas where scope for improvement exists. This is the next point. Energy audit will help to understand more about the base of energy. Energy audit एनर्जी के बहुत से तरीकों को समझने में मदद करेगा. एनर्जी ऑडिट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द बेस ऑफ एनर्जी. एनर्जी के बहुत से तरीकों के बारे में समझने में एनर्जी ऑडिट मदद करेगा. एंड फ्यूल आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, और जो भी फ्यूल इंडस्ट्री में उपयोग में ले रहे हैं उसको समझने में मदद करेगा. एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट, और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जहां इंप्रूवमेंट के स्कोप एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे इंप्रूवमेंट के जो स्कोप है वो एग्जिस्टेबल है. ठीक है, जहां पे इंप्रूवमेंट के स्कोप है एग्जिस्ट करते हैं. एनर्जी ऑडिट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द बेस ऑफ एनर्जी. एनर्जी के तरीकों के बारे में समझने के लिए एनर्जी ऑडिट सहायता करेगा. एंड फ्यूल आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, और जो भी इंडस्ट्री में फ्यूल यूज आ रहा है उसको समझने में सहायता प्रदान करेगा. एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज, और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है वेयर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट, जहां इंप्रूवमेंट के स्कोप एग्जिस्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन जनरल, अगला पॉइंट है इन जनरल
In general, energy audit is the energy audit is the energy audit is the translation of conservation ideas, translation of conservation ideas, of conservation ideas, conservation ideas into realities, into realities, realities, conservation idea into realities while lending technically feasible solution, while lending technically feasible solution, technically feasible solution, technically feasible solutions with economic and other organizational considerations, within a specified time frame, within a specified time frame, within a specified time frame, This is the next point. In general, energy audit is the translation of conservation ideas into realities. यानी कंजर्वेशन आइडियाज का ट्रांसलेशन करना रियलिटी में वास्तविकता में कंजर्वेशन आइडियाज का ट्रांसलेशन करना एनर्जी ऑडिट है. इन जनरल, एनर्जी ऑडिट इज द ट्रांसलेशन ऑफ कंजर्वेशन आइडियाज इनटू रियलिटीज. कंजर्वेशन आइडियाज का रियलिटी में वास्तविकता में ट्रांसलेशन ही एनर्जी ऑडिट है. वाइल लैंडिंग टेक्निकली फिजिबल सॉल्यूशन, उसमें टेक्निकली फिजिबल सॉल्यूशंस के द्वारा विद इकोनॉमिक्स के साथ टेक्निकली फिजिबल सॉल्यूशन उसमें होने चाहिए. एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस वहां पे होने चाहिए. In general, energy audit is the translation of conservation ideas into reality while lending technically feasible solution with economic and other organizational consideration within a specified time frame. एक specified time frame में दूसरे organizational considerations और technically feasible solution economic manner में उसके द्वारा होते हैं, energy audit के द्वारा होते हैं. Now the next is the need for energy audit. The next point is that the primary objective of energy audit, the primary objective of energy audit, primary objective of energy audit is to determine ways to reduce energy consumption, per unit of product output, per unit of product output
per unit of product output or to lower operating cost, or to lower operating costs. This is the next point. The primary objective of energy audit to determine ways to reduce energy consumption per unit of product output. यानी पर यूनिट प्रोडक्ट आउटपुट पर एनर्जी कंजम्पशन की जो है उसको रिड्यूस कराना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट इज टू डिटरमाइन वेज, उन तरीकों को डिटरमाइन करना टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन करने के पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट, यानी पर यूनिट प्रोडक्ट आउटपुट पर एनर्जी कंजम्पशन के रिड्यूस करने के तरीकों को जानना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनर्जी ऑडिट का. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट इज टू डिटरमाइन वेज टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट और टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर जो तरीके हैं एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कराने के जो तरीके हैं उनको जानना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनर्जी ऑडिट का. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट इज टू डिटरमाइन वेज टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, यानी एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के तरीकों को डिटरमाइन करना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनर्जी ऑडिट का. किसमें? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी पर यूनिट प्रोडक्ट आउटपुट में एनर्जी कंजम्पशन के तरीकों को डिटरमाइन करना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनर्जी ऑडिट का, जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट energy audit provides a benchmark energy audit provides a benchmark which is called as reference point for managing energy in the organization, and also provides the basis for planning a more effective use of energy throughout the organization, This is the last point, organization. एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड्स ए बेंचमार्क. एनर्जी ऑडिट एक बेंचमार्क प्रदान करता है विच इज कोल्ड एज रेफरेंस पॉइंट. बेंचमार्क या इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं. एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड्स ए बेंचमार्क. एनर्जी ऑडिट एक बेंचमार्क प्रदान करता है फॉर मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी को मैनेज करने के लिए एनर्जी ऑडिट एक बेंचमार्क प्रदान करता है. एंड आल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्लानिंग ए मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन से होकर जो अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से एनर्जी के यूज के प्लानिंग को भी ये प्रदान करता है, प्लानिंग के बेसिस को भी प्रदान करता है. एंड आल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्लानिंग ए मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से होकर
ऑर्गेनाइजेशन से होकर जो एक ज्यादा इफेक्टिव एनर्जी का जो उपयोग है उसकी प्लानिंग के बेसिस को भी ये प्रदान करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।